اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گیدڑ کا فرار۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سارے جانور مل جل کر زندگی بسر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت دی ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ آپس میں باتیں کرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس علاقے میں جہاں وہ سارے جانور رہتے تھے وہاں پہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور پانی خشک ہو گیا تھا، تمام ندی اور دریا کا۔ اب وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہیں اگر ہم یہیں رہ گئے تو ہم تو اس پانی کی قلت سے مر جائیں گے۔ سب کو بلایا گیا، سب نے اپنے اپنے مشورے دینے شروع کر دیے۔ ایک نے کہا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ دوسرے ملک چلے جانا چاہیے جہاں بہت سارا پانی ہو اور ہمیں اس خشک سالی کا خطرہ نہ ہو۔ یہ لنگور تھا جس نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ دوسرا بولا کہ میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، میں تو چلتے چلتے ہی مر جاؤں گا، اور یہ کچھوا تھا۔ ایک بولا کہ کچھ بھی ہو ہمیں سو کر گزار دینا چاہیے یہ سارا وقت، اگلی دفعہ جب بارش ہوگی تو پانی پینے کے لیے ہم دوبارہ سے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ سانپ تھا کیونکہ سانپ بہت لمبا سو سکتا ہے۔ ایک نے کہا میں اتنا لمبا نہیں سو سکتا، اتنا لمبا سو کے کیسے گزاروں، مجھے تو روز ہی نیند آتی ہے اور روز ہی مجھے اٹھنا بھی ہوتا ہے اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں، دوڑتا بھاگتا بھی ہوں، اور یہ خرگوش تھا۔ آخر یہ بحث بہت لمبی چلی۔ اس بحث میں گیدڑ اور بھیڑیا بھی تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کے تالاب کھودتے ہیں، یہاں پہ ایک گڑھا کھودتے ہیں، جب بارش ہوگی تو اس میں پانی بھر جائے گا اور جگہ جگہ ان گھڑوں میں جب پانی بھرے گا تو بہت سارا پانی ہمارے پاس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہم سب مل کے تالاب کھودیں گے اور ایک بہت بڑا سا تالاب کھود لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کئی تالاب کھودنے کے بجائے ہم ایک بڑا تالاب کھودتے ہیں۔ اور یہ شیر تھا جس نے یہ عقل مندانہ مشورہ دیا۔ اس نے کہا سارے مل کے جب ایک تالاب کھودیں گے اور بہت بڑا سا ایک تالاب ہوگا تو اس کے اندر جا کے بہت بڑا ہاتھی، شیر اور گیدڑ سب آرام سے نہا سکیں گے، گرمی میں ہمیں گرمی بھی نہیں لگے گی۔ سب نے اس شیر کی تجویز کو مان لیا۔ اب شیر چونکہ بادشاہ تھا اور اس نے حکم دیا کہ سارے مل کے گڑھا کھودو، گو کہ ایک دن میں بھی اس گڑھے کو کھودوں گا، لیکن سب کی باریاں لگیں گی۔ چونکہ تجویز شروع کرنے میں بھیڑیے اور گیدڑ کا ہاتھ تھا تو شیر نے کہا ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے دن بھیڑیا کھودے گا اور سب باری باری کھودنے کے بعد جو آخری دن ہوگا اس گڑھے کو کھودنے کا اس دن گیدڑ کھودے گا۔ سب نے یہ منظور کر لیا۔ اب سب نے مل کر گڑھا کھودنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بھیڑیے نے گڑھا کھودا اور پھر اس کے بعد باری باری تمام جانور گڑھا کھودتے گئے۔ کبھی بندر آتا، کبھی جراف آتا، کبھی ہرن آتا، کبھی زیبرا آتا، کبھی گھوڑا آتا، سارے جانور آتے گئے اور سب تھوڑا تھوڑا اس گڑھے کو کھودتے گئے۔ شیر کی باری بھی آئی اور شیر نے بھی گڑھا کھودا۔ اب آخر میں باری تھی گیدڑ کی۔ جب گیدڑ کی باری آئی تو وہ غائب ہو گیا اور کسی کو نظر نہ آیا۔ سب نے آخرکار پھر آخری بار جو گڑھا کھودنا تھا وہ تھوڑا تھوڑا مل کے پھر کھود لیا۔ کچھ عرصے کے بعد بارش ہوئی اور وہ تالاب کی صورت بن گیا اور بہت سارا پانی جمع ہو گیا۔ اب شیر نے یہ قانون بنایا کہ سب لوگ اسی تالاب سے باری باری پانی بھی پئیں گے۔
पहले चूंकि भेड़िए ने खोदा था तो भेड़िया पानी पिएगा, और सबसे आखिर में चूंकि शेर ने खोदा था तो शेर पानी पिएगा। हालांकि वो जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बहुत अच्छा बादशाह था। उसने जुल्म नहीं करना था अपने तमाम जानवरों पे, इसलिए उसने ये इतनी प्यारी तजवीज भी दी। वो बहुत नरमदिल बादशाह था। पहले सब पानी पीते और शेर सबसे आखिर में पानी पीता था। हर छोटा बड़ा जानवर पानी पी के जब सैराब हो जाता था तब शेर की बारी आती थी। लेकिन गीदड़, जो कि बज़ाहिर तो सबसे छुप गया था, लेकिन वो आस पास ही था, किसी को भी नहीं पता था। वो लंबी लंबी ऊंची ऊंची खुर्द झाड़ियों में छुप गया था। क्योंकि बारिश बहुत हुई थी और झाड़ियां बहुत उग गई थी उस जंगल में, तो बहुत लंबी लंबी झाड़ियां निकल आई थी जहां गीदड़ आसानी से छुप सकता था। अब जब दूसरे दिन वो पानी पीने सब लोग आए तो उन्होंने देखा कि पानी कुछ कम है, लेकिन उन्होंने एहसास ना किया। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। चंद दिन के बाद उन्हें वो पानी गदला गदला मट्टी वाला महसूस होने लगा। उन्होंने ये सब महसूस किया। उन्होंने कहा कि पानी तो बहुत गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी में कोई गंदा जानवर आके नहाता हो, जबकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गंदा रहता हो। और चूंकि ये पानी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है तो हम इसको पीते हैं और पहले अपने आप को साफ करते हैं अच्छे तरीके से झाड़ के, फिर इस पानी में आके गोता करते हैं, नहाते हैं, ताकि पानी गंदा भी ना हो। शेर ने कहा, अब कोई तजवीज होनी चाहिए ताकि उस चोर को पकड़ा जा सके कि जो हमारे पानी को गंदा करता है और खत्म कर रहा है। कछुए ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करें बादशाह सलामत कि मेरी जो कमर है, मेरी जो पुश्त है, उसके ऊपर जो खोल है, उसके ऊपर बहुत सारा मोम लगा दें और फिर देखें मैं क्या करता हूँ। मैं सारी रात इस तालाब के बाहर बैठा रहूंगा, जो भी होगा वो मुझे पत्थर समझेगा और फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। सबको ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और फिर कछुए के खोल के ऊपर बहुत सारा मोम लगा दिया गया और फिर कछुआ तालाब के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा कि अब जो भी आएगा वो पकड़ा जाएगा। उसने अपना सर अपने खोल के अंदर कर लिया और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद देखता भी रहता कि कौन आ रहा है। आखिर थोड़ी देर के बाद उसे पत्तों की सरसराहट और खड़खड़ाहट महसूस हुई, तो उसने देखा अपना सर निकाल के, अरे ये तो वही गीदड़ है जो यहाँ से भाग गया था। बज़ाहिर है हमें लगा ये यहाँ से चला गया है इस जंगल से, लेकिन ये तो यही मौजूद है। अच्छा, अब उसकी समझ में आने लगा था कि असल मुजरिम कौन है। उसने अपना सर अंदर कर लिया और फिर दिल में खुश होने लगा कि आज तो ये पकड़ा ही जाएगा। अब गीदड़ आया और उसने देखा इतना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, चलो मैं इसी के ऊपर पैर रख के तालाब से पानी पीता हूँ, जरा अच्छा है ऊंचा होकर पीऊंगा। उसने जैसे ही अपने दोनों पैर उसके ऊपर रखे तो उसके पैर चिपक गए। उसने जब अपने पिछले पैर छुड़ाना चाहे और आगे के पैरों से लात मारी तो कछुए ने सर निकाल कर दिखाया कि देखो ये तो मैं हूँ और तुम अब पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुके हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से सिरकने लगा, लेकिन जब वो उसे लाते मारता जाता था तो उसके आगे के पैर भी चिपकना शुरू हो गए थे। आखिरकार ज्यादा लाते मारने पे उसके वो दोनों पैर भी चिपक गए। उसने फिर कछुए से कहा, मुझे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, मेरे दांत बहुत मजबूत हैं, मैं तुम्हें बहुत सख्त नुकसान पहुंचाऊंगा। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, आजमा कर देख लो, मेरा खोल तुमसे ज्यादा सख्त है। और फिर जब गीदड़ को एकदम गुस्सा आया तो उसने उस खोल के ऊपर अपने दांत गाड़ दिए। जैसे ही उसने अपने दांत गाड़े तो उसके दांत भी जोर से जाके उसी मोम से चिपक गए। कछुए ने जोर जोर से सबको बुलाना शुरू कर दिया। सब इर्द गिर्द जमा हो गए। सबने आके देखा कि ये तो वही गीदड़ है और फिर उन्होंने कहा कि अब इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। बादशाह शेर ने कहा, ठीक है, आज के दिन हम इसको छोड़ते हैं और कल के दिन हम इसको सजा देंगे। उससे कहा कि बताओ अब तुम्हें क्या सजा दी जाए। चूंकि बादशाह फितरतन नरम दिल था तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि गीदड़ को ऐसी सजा मिले जो बहुत सख्त हो। उसने कहा, ऐसी सजा देंगे
कि जिससे इसको सबक भी हासिल हो। सब जानवरों ने कहा, ठीक है, आप जो कहें वो इसके लिए सजा हमें मंजूर है। शेर ने कहा, तुम्हारी जिंदगी कल तक है, हम तुम्हें बस इतनी ही रियायत दे सकते हैं कि तुम अपनी मौत को खुद मुंतखब कर लो, खुद इंतखाब करो इस बात का कि तुम्हें किस तरह मरना है। गीदड़ ने कहा, बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत कि आपने मुझे सोचने के लिए एक रात दी। ठीक है, कल सुबह मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस तरह मरना है। अब दूसरे दिन सारे जानवर इकट्ठे हो गए और सबने आकर उस जगह पर पहुंचकर ये देखना चाहा कि किस तरह से गीदड़ को मौत दी जाती है और गीदड़ अपनी मौत को किस तरह मुंतखब करता है। जब सब जमा हो गए, बादशाह का इंतजार किया जाने लगा। बादशाह भी आ गया और फिर बादशाह ने कहा, बताओ कि क्या तुम फैसला कर चुके हो कि तुम्हें किस तरह से सजा दी जाए? उसने कहा, हाँ, मैंने एक दफा बंदर को चूहे को मारते देखा था। बंदर चूहे की दुम पकड़ के जोर जोर से घुमाता और उसे दूर फेंकता था, जिससे चूहा दूर जाके गिरता, जख्मी होता और वो मर जाता था। और फिर बंदर उस चूहे को खा लेता है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ यही करें कि मेरी दुम से पकड़ के मुझे जोर जोर से घुमाएं और खूब जोर से दूर दे के मारें और फिर मैं जख्मी हो जाऊं और जब मुझे होश न रहे तो आप लोग मुझे खा लें, क्योंकि जिंदा अगर मुझे खाएंगे तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही किया जाएगा। उसने कहा, मेरी एक और ख्वाहिश भी है, मुझे सजा देने वाला भेड़िया होगा। उसने कहा, ठीक है, जो तुम चाहो वही होगा। अब शेर ने भेड़ियों को बुलाया और शेर भेड़िए से कहा कि चलो तुम इसकी गर्दन दुम को पकड़ो और इसको जोर जोर से घुमाओ और उसे दूर फेंको। गीदड़ बहुत चालाक था। एक दिन पहले जो इसे खाना दिया गया था, उस गोश्त के अंदर की चर्बी उसने बचाकर अपनी दुम पे लगा ली थी और अपनी दुम को चिकना कर लिया था, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। भेड़िए ने उसको दुम से पकड़ा और जोर से घुमाना शुरू किया, लेकिन ये क्या, भेड़िए के हाथों से तो गीदड़ छूट के गिर गया और करीब ही गिरा। वो जब उसकी दुम से उसे पकड़ने लगता, जब उसके हाथ से उसकी दुम छूट जाती, क्योंकि उस पे चिकनाई जो लगी हुई थी, वो उसको उठा नहीं पा रहा था। आखिरकार भेड़िए ने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी कोशिश करके उसको पकड़ा और फिर पकड़ के घुमा के मारने लगा। तो गीदड़ ने कहा, अरे अरे जरा रुकिए, पहले आप सारे लोग जो हैं वो थोड़ा दूर दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इतने जोर से गीदड़ भाई मुझे फेंक के मारे, जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और मैं आप लोगों के ऊपर आके गिरूं और कोई छोटा जानवर जैसे कि खरगोश है, जैसे कि मुर्गी है, इनके ऊपर जाके गिरूं तो वो नाहक मर जाएं। सब दूर दूर हो गए। उसने कहा, आओ भेड़िए भाई, अब मुझे दुम से पकड़ो और घुमा के जोर से दे के मारो। भेड़ी ने फिर दोबारा ताकत लगाई और उसको दुम से पकड़ के जोर से घुमा के मारना चाहा, लेकिन वो तो करीब के दरख्त पे ही जाके टकराया। उसके हाथों से उसकी दुम जो फिसल गई थी, वो दरख्त से टकराया कि आन की आन में अभी सब समझते कि ये क्या हुआ, जोरदार धमाका हुआ, कहीं गीदड़ मर गया क्या। लेकिन गीदड़ तेजी से उठा और तेजी से दौड़ के भाग गया। इसीलिए कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। उस दिन के बाद से गीदड़ को किसी ने जंगल में नहीं देखा, लेकिन हाँ, एक जानवर जो अभी तक तालाब पे बैठा है और इंतजार कर रहा है, वो है कछुआ। वो आज भी तालाब पे बैठा है और गीदड़ का इंतजार कर रहा है कि कब ये गीदड़ वापस आएगा और कब हम इससे अपना इंतकाम लेंगे। वो इसलिए ताकि गीदड़ आके पानी को गंदा ना कर दे और दूसरों को पानी पीने से महरूम ना कर दे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर शख्स को उसके जो उसने गलत काम किए हैं उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यही इंसाफ है। आज की ये कहानी खत्म हुई।
अब सुनेंगे आप अगली कहानी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।